Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are gonna do a topic called as turbocharger. But I'm making this video after a really long time because I was busy in my own, so I was just caught up with my own personal commitments, and I'm back with a very solid topic, that is turbocharger. So similarly as turbocharger, there is supercharger. So what are these turbochargers and superchargers? Mainly we look first on. So basically it is the internal combustion design or internal combustion engine, we can say, that basically changes the efficiency and the power output. There's a difference in the efficiency and the power output. So compared to superchargers, we use the turbochargers mostly. So for the difference, I will be covering that part too in the later part. So let's get started with the component of the turbocharger. So this is the general layout of the turbocharger. So firstly we have got a compressor over here. So compressor से जाता है air inlet, and then the air is compressed. As you can see, the name itself says compressor, so it will compress the air and then it will send through this pipe. As you can see, this is a wastegate controller. So wastegate controller basically controls the exhaust gases. We'll see this part in a later topic. So after wastegate controller, we have got throttle valve. So throttle valve is basically when we move to the maximum RPM that is controlled by the throttle, the valve opens. So basically it moves, as you can see this wait, I'll just get this. Yes, so you can see this is the throttle valve when it is wait, I'll just explain it more. Yeah, so when the valve is like this, it means the throttle is set to ideal. It means it is closed, no air can flow, right? And when it starts, when we push the throttle, when we pull the throttle, when we pull the throttle, it starts to make some degree with the pipe. Fine. And that is how the air starts to move inside. Now that is how the air will move. Okay, so now here it is very important, another, that is the manifold pressure. So what is manifold pressure? Basically so when the air moves inside the engine intake system, how much pressure the air is moving with, that is right by the manifold pressure. So it determines how much power the engine is going to produce. So more the air is moving with high pressure, more will be the power. Let me just clean this all up because I've just made chaos. Okay, so what I was telling is that as the pressure increases, more will be the power. So from that you can assume that everything is maintained by the throttle valve. If it will close or it will open, which is done by the throttle. So everything is connected. Now moving on, let me just clear it again. Now moving on to the next topic, next component, that is the fuel injector. We're gonna look this in further video. Now moving on to the next, that is the engine oil pressure, actuator, wastegate. Now another very important component. So wastegate is it can be automatic also and manual also. First we'll see the use of the wastegate. So everything is determined by the wastegate.
more the air, as you can see, this is going to the atmosphere. Okay, so for example, there is a lot of cases where we can discuss this. For beginning purposes, you can just note that wastegate wastegate works same as the wastegate controller. Okay, that is the same thing. तो ये भी हमारा ओपन और क्लोज करता है बटरफ्लाई वाल्व, जैसा मैंने आपको इधर समझाया था. तो इधर ये हमारा एटमॉस्फेयर में सेंड करता है और ये हमारा दूसरा पार्ट एग्जॉस्ट गैस. सो दिस दैट इज फ्लोइंग, something that is flowing is called as the exhaust gas, also called as the combustible gas. Okay, exhaust gas or the combustible gas. तो ये हमारा इधर जाता है. फिर टर्बाइन में hot gases rotates and then it sends to the compressor through this is the common shaft. Okay, now I hope इतना component आपको समझ में आ गया होगा. Now moving on to the next topic. So you can see it says that the turbocharger consists of a turbine wheel, that is this wheel that rotates basically, and a compressor fitted on the common rotor shaft. Got it? I hope that you get what this point is saying. Moving on to the next point. Turbocharger is either an integral part of the engine or mounted externally on the engine, shielded from the combustible fluid lines in the engine. So as I said, combustible fluid. तो combustible fluid हमारा exhaust gas ही होता है जो हमारा टर्बाइन से रोटेट होके कंप्रेसर की तरफ जाता है. तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है. ये बस इतना कह रहा है कि टर्बो चार्जर हमारा एक इंटरनल पार्ट है या तो इट इज़ माउंटेड एक्सटर्नली ऑन द इंजन शील्ड. ठीक है ना. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. एग्जॉस्ट गैस इज अ गाइड ऑन द टर्बाइन व्हील कॉजिंग इट टू रोटेट एंड देन पास टू द एटमॉस्फेयर. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा लेट्स गो बैक टू द PDF. तो जैसा आप इधर देख सकते हैं हमारा 2 लाइन होता है. 2 लाइन की तरफ जा रहा है. एक ये और एक इस तरफ. तो ये हमारा एटमॉस्फेयर की तरफ जाता है, दूसरा हमारा टर्बाइन की तरफ. Not very hard. Let's move on to the next point, that is more the exhaust gases on the turbine, faster it rotates. तो जितना ज़्यादा हमारा एग्जॉस्ट गैस होगा उतना ज़्यादा हमारा टर्बाइन की तरफ पास करेगा, उतना जल्दी हमारा पावर प्रोड्यूस होगा. ठीक है, क्योंकि उतने ही प्रेशर से हमारा एयर आ रहा होगा कंप्रेसर से कंप्रेस होके. फाइन, विच इन टर्न रोटेट्स द कंप्रेसर फास्टर एंड हेंस ग्रेटर विल बी द प्रेशर रेशियो ऑफ द कंप्रेसर. प्रेशर रेशियो जैसे कि अगर ज़्यादा जा रहा है तो 4:1 का हमारा मिल जाएगा 60:1 और मे बी 60:1. तो it all depends on the how faster that turbine is rotating. That is with the help of the more exhaust gas that is passing through. Now अब हम waste gate की तरफ जाते हैं, which is another very very important topic. Now waste gate, it obtains constant power output from engine. Compressor must deliver constant mass of air, but since density of air decreases with altitude, compressor must rotate faster to compensate the reduction in density as the aircraft can maintain constant pressure. This is done with the help of wastegate. Okay, very very important. Now इधर हम फिर से आ चुके हैं हमारे जनरल लेआउट की तरफ. तो हम जैसा कि मैंने बोला कि जितना ज़्यादा एयर हमारा पास होता है उतना ही हमारा टर्बाइन रोटेट करेगा और फिर कंप्रेसर की तरफ कंप्रेस होके भेजेगा और फिर उसी हिसाब से हमारा पावर जनरेट होगा क्योंकि हमें ज़्यादा प्रेशर ऑफ एयर मिल रहा होगा. लेकिन अगर आप सोचें इफ़ वी गो हायर इन एल्टीट्यूड हमारा एयर डेंसिटी कम हो जाता है, मतलब कि हमारा एयर इज़ थिनर नाउ. इफ़ यू सी हमारा लेस एयर ही एंटर होगा. तो व्हाट टू डू इन दिस केस? अब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कैसे करेंगे प्रोड्यूस कैसे करेंगे प्रेशर को? तो अभी हम क्या करते हैं, जिस इंजीनियर्स ने ऐसा दिमाग लगाया कि अगर हम इस थ्रॉटल वाल्व को दे ही रहे हैं तो इस थ्रॉटल वाल्व को हम क्लोज कर देते हैं. नाउ एज द थ्रॉटल वाल्व इज क्लोज्ड,
Let me clean it again. As the throttle valve is closed, you see इधर से तो air हमारा जाएगा ही नहीं, तो सारा air will be went inside, and that is how we just manage to get more power and more pressure and more power. So कुछ ऐसा ही होता है हमारे हायर डेंसिटी हायर ऑल्टीट्यूड में जाते ही. नाउ अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अभी हम पहले उस पीडीएफ में वापस जाते हैं कि वो अभी पीडीएफ और क्या कह रहा है. ओ माय गॉड, वेट. तो इधर कहता है कि टर्बाइन वेस्ट गेट इन टर्बाइन बाईपास इन फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिव एग्जॉस्ट डक्ट विच रेगुलेट्स डिग्री ऑफ ओपनिंग थ्रू द बाईपास. ऐसा मैंने बताया कि हमारा डिग्री अब हमारा रेगुलेट करता है. दिस इज सम 90 डिग्री, दिस टर्न्स एज सम okay, this is 0 degree, this turns at 30 degree, this turns maybe 40, okay, 60 and then 90. So that is how हमारा I'm just explaining हमारा degree कैसे change होता है, basically not very important. So it provides the control over the compressor output by varying the quantity of the exhaust gas that is passing to the turbine, and उसी हिसाब से हमारा फिर स्पीड वैरी होता है जो कंप्रेसर में जाता है और फिर वैरी होता है हमारा पावर. तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड. टू मेक इट सिंपल फॉर यू आई विल जस्ट राइट डाउन कि क्या क्या वैरी होता है. सबसे पहले हमारा एग्जॉस्ट गैस, जो सबसे पहले हमारा वैरी होता है, दैट इज एयर. एयर ही कम हो जाएगा, लेकिन तब भी हम मैनेज करते हैं अपने वेस्ट गेट से उसको बंद करके, तो वो एटमॉस्फेयर में हवा जाएगा ही नहीं. तो हमारा स्पीड जिस हिसाब से टर्बाइन में जाता है, टर्बाइन में आई गेस आई शुड गेट अ पेन नाउ. ओके, आई डोंट हैव मच मनी यार गाइस, इसी से काम चला लो, ठीक है. टर्बाइन में हमारा जाता है और फिर जिस स्पीड से टर्बाइन में जाता है उसी स्पीड से हमारा टर्बाइन भी रोटेट करता है, और रोटेट करने के बाद उसी अमाउंट से कंप्रेसर से कंप्रेस होके हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज पावर जनरेट होता है. Got it, guys? Now moving on to the next. When waste gate is open, all exhaust gases pass directly to atmosphere. दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, राइट. अगर वेस्ट गेट खुला होगा सारे हमारे हवा चला जाएगा एटमॉस्फेयर में. एज द वेस्ट गेट क्लोज इज द एग्जॉस्ट गैस डायरेक्टेड टू द टर्बाइन एंड मैक्सिमम रोटर स्पीड एंड हेंस बूस्ट प्रेशर इज अचीव्ड व्हेन वेस्ट गेट इज फुल्ली closed. Now what is boost pressure? Now coming back to the diagram, that is boost pressure. तो ये ये आप देख सकते हैं, it is basically द इंस्ट्रूमेंट जिसको कहते हैं बूस्ट प्रेशर. सो बूस्ट प्रेशर हमारा ये जब ज़ीरो पे रहता है, इसका मतलब एटमॉस्फेयर हमारा पूरा मतलब कि प्रेशर हमारा एटमॉस्फेयर से पूरा वो है, मतलब सारे हमारे जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर के पास ही जा रहे हैं. और फिर ऐसा टाइम होता है कि दिस इज़ एक्चुअली नॉट वेरी इम्पॉर्टेंट, लेकिन आप बस देख लो हमारा इसी से मेजर होता है बूस्ट प्रेशर, और दिस इज़ द मैनिफोल्ड गेज. कमिंग बैक टू द इम्पॉर्टेंट पार्ट. ओके, नाउ यू सी दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्रिटिकल एल्टीट्यूड. एक पेज ले लेते हैं जिसमें हम आपको समझाएं कि क्रिटिकल एल्टीट्यूड होती क्या है. नाउ अगर आप सोचें कि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हम जैसे ही हायर एल्टीट्यूड में जाते हैं हमारा एयर मॉलिक्यूल्स जो है वो और कम होने लगता है, तो इस हिसाब से हम अपना थ्रॉटल वाल्व को फिक्स कर देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर हमारा टर्बाइन में जा सके. और फिर राइट, आई एम नॉट गोना रिपीट ऑल ऑफ दैट. तो फिर से वही होता है, लेकिन ओ माय गॉड, तो हमारा सारा ड्राइंग हट चुका है, लेकिन बड़ी बड़ी शहरों में छोटी बात होती रहती है. वी डोंट माइंड, हम फिर से ड्रॉ कर लेंगे, बट टू सेव अ टाइम आई होप यू ऑल गेट दिस. तो लेकिन देयर इज़ अ पॉइंट व्हेन हमारा क्रिटिकल जब हमारा
पावर जनरेट होता ही नहीं है। मतलब कि एट हायर ऑल्टीट्यूड हमारा गैस जो पास हो रहा होता है टर्बाइन की तरफ से वो कांस्टेंट ही रहता है। मतलब कि वो और ज़्यादा प्रोड्यूस होता ही नहीं है कि हमारा और ज़्यादा टर्बाइन रोटेट हो और भी हाई और ज़्यादा मतलब कि पावर जनरेट हो। मतलब कि द अमाउंट ऑफ quantity of air remains constant after a certain altitude and where the power is no more generated. Not meaning that no more generated मतलब कि होता नहीं और गिर जाएगा, ऐसा कोई सीन नहीं है। No more generated means it remains constant। ठीक है, इसका ये मतलब है। तो despite you close the wastegate valve to increase despite you close the wastegate valve, तब भी power will not increase at that altitude, and that altitude is called as the critical altitude. Now you get this point। ठीक है, अभी हम फिर से सफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने इधर फिर से बताया आपको, वेस्टगेट वाल्व कैन बी कंट्रोल्ड मैनुअली और ऑटोमेटिकली टू प्रिवेंट ओवर बूस्टिंग। तो हम ऑटोमेटिकली कभी कभी खुद ही बंद हो जाता है, हमको खुद से बंद करने पड़ता है। तो ओवर बूस्टिंग मतलब कि जैसा मैंने आपको उसका इंस्ट्रूमेंट भी दिखाया था, ओवर बूस्टिंग इधर इट इज़ वेरी वेरी प्लस और बहुत माइनस, तो डैट इज़ नॉट वेरी गुड फॉर दी इंजन। तो उससे हमको बचाता है वेस्टगेट। कभी ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई एयर की तो बंद कर देता है, कभी ज़्यादा कभी कम ज़रूरत पड़ गई तो उनको खोल देता है, तो वो एटमॉस्फेयर के पास चली जाती है। तो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स बेसिकली। नाउ कमिंग टू दिस वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट ग्राफ। तो इस ग्राफ को हम अब अच्छे से समझेंगे। यस, so this graph says that so there is a point where you can see this is the engine start। so ये engine start में आप एक point देख रहे हैं, fully open means the throttle is fully open। तो हमारा जब throttle पूरा ही पूरा open होगा तो हमारा जो wastegate valve है वो पूरा ही खुला रहेगा। इट इज़ इन दिस, ना एकदम कम ना एकदम ऐसा 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 कुछ नहीं, ये पूरा खुला रहेगा ताकि मैक्सिमम एनर्जी हमारा पावर और ही जनरेट हो जाए। तो यू कैन सी द वेस्टगेट वाल्व ओपन्स और हमारा इधर जाता है आइडियल पोजीशन पे। जब हमारा थ्रॉटल बंद होता है तो इट इज़ एट द हाईएस्ट पोजीशन जब हमारा फुली शट हो जाता है वेस्टगेट वाल्व। wait, I'll just repeat this thing again for those who did not get it। फिर से मैं बताऊंगी इसको, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा इंजन है। इस पॉइंट पे हमारा वेस्टगेट फुली ओपन हमारा थ्रॉटल होता है, ठीक है। हम थ्रॉटल की बात कर रहे हैं, नहीं हम ये थ्रॉटल की बात नहीं कर रहे, ये हम वेस्टगेट की बात कर रहे हैं। वेट, इधर मैं कंफ्यूज हो गई, आई एम सॉरी गाइस। इधर हम वेस्टगेट की बात कर रहे हैं। तो वेस्टगेट हम जब थ्रॉटल हमारा इंजन एकदम ही बंद मतलब स्टार्ट ही कर रहे होते हैं तो हमारा वेस्टगेट खुला होता है। मतलब कि हमारा एयर जा रहा है, एटमॉस्फेयर की तरफ भी जा रहा है, टर्बाइन की तरफ भी जा रहा है। मतलब कि लेस पावर जनरेट होगा क्योंकि हमारा और भी मतलब कि ब्लीड हो रहा है एयर। तो वी विल नॉट बी इट विल नॉट बी जनरेटिंग मोर पावर। तो एज यू कैन सी फिर हमारा धीरे धीरे
वेस्ट गेट जो वाल्व है वो पूरा ही बंद हो जाता है, मतलब कि पावर हमारा और भी हाईली, आप देख रहे हो ग्रेजुअली हाउ द पावर इज़ इंक्रीजिंग, तो हमारा पावर और भी इंक्रीज होते जा रहा है. हाउ द वेस्ट गेट जिस हिसाब से हमारा बंद हो रहा है, फुल्ली शट, पावर हाई. गॉट गाइस. तो ऐसे ही फिर हम थोड़ा इरेज कर देते हैं इसको. हाँ, तो ऐसे ही फिर हमारा जब टेक ऑफ करने वाला होता है तो हमारा ये वाल्व जो है पूरा ही क्लोज रहता है, पावर पूरा हाई रहता है, परफेक्ट फॉर टेक ऑफ. फिर आप देख सकते हैं अभी तक क्रिटिकल ऑल्टीट्यूड की बात किया. क्रिटिकल ऑल्टीट्यूड में बताया था जैसे ही हमारा वेस्ट गेट वाल्व बंद रहता है तब भी हमारा पावर तो जनरेट होता ही नहीं है. तो इधर आप देख सकते हो पावर हमारा ग्रेजुअली डिक्रीज भी कर जाता है. तो दिस इज़ द क्रिटिकल ऑल्टीट्यूड. वेट, मैं पूरा क्लीन कर देती हूँ ताकि आप एक बार लुकआउट कर सको पूरे स्टफ पे. दिस इज़ वेस्ट गेट वाल्व का ये ओपन, पूरा ओपन रहता है, पावर एकदम कम रहता है, पूरा बंद हो जाता है, पावर हाई टेक ऑफ के लिए, परफेक्ट हाई हाई. नाउ अब हम देख सकते हैं आप इस तरह कि हमारा ना बंद होता है ना कुछ होता है, हमारा ये कांस्टेंट हो जाता है वेस्ट गेट वाल्व, और पावर भी रिड्यूस ही हो जाती है. ठीक है, तो ये हमारा रहा पोजीशन अच्छे से एक्सप्लेन होने का. सो फॉर टुडे आई वुड want to keep this video short. मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहूँगी, but for the technical topic we have to read even more, so I have this whole PDF जिसमें हम देखेंगे और भी चीज़ें in next video. So for today जो लोग बस टर्बो चार्जर पढ़ने आए थे from the other fields too, उनके लिए it is enough I think. And for the technical general people, I would want you to stay tuned with my upcoming videos and just drop down all doubts you have, and I would try to solve each and every doubt. And please let me know if there is any questions that you have, and make sure to like it and subscribe if you want, and share to most of the people to even gain this knowledge. Yeah, that's it for today. Thank you so much everyone, and please also let me know if I should speak in Hindi or English or mix, because I'm really confused what language I should go for, because comfort तो हिंदी में आता है लेकिन English तो हमारा is like very important for this field. So just let me know what to speak and all, because I'm very confused. Okay, so that's it for today. Goodbye captains, and study hard. You will be a pilot soon. Bye.